Hi everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves. आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा chapter which is physical features of India, which is basically the second chapter of geography. We have already finished the first chapters of history, geography, eco and political science, one of each. So let's begin on that note. The second chapter का wave, which is the physical feature of India, geography से हम कर रहे हैं शुरू. Now, what are the topics that we are going to do today? So we'll basically have a quick understanding in today's session about what are the various major physiographic divisions of India. What do we mean by the physiographic divisions of India? And then we will dwell into the very first physiographic division, which is the Himalayan mountains. तो आज हम हिमालयस को भी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ बिफोर वी बिगिन लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूं आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब, कमिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. I've done my studies in the field of humanities and hence I specialize in English and social science. Now, प्री एक्टिविटीज का पर्पस आपको पता है. इम्बाइब पे हम हर एक सेशन के पहले आपके साथ शेयर करते हैं इम्बाइब लाइव क्लासेस के pre-activities, which is basically a set of maybe certain reading materials or videos wherein we give you the pre-required knowledge pieces, the prerequisite of the session, right? यानी कि सेशन में आने के पहले अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा रीड थ्रू कर लो, and it wouldn't take you more than 5 to 10 minutes at max to do that, to finish that up. बट वो 5 से 10 मिनट में आप जिस तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो सेशन के लिए, सेशन में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बीइंग टॉट इज ऑन अनदर लेवल, जो उस प्री क्लास एक्टिविटी के पहले नहीं होगी. And of course, while reading those, while finishing up the activities, you also come to realize that what are certain topics that you're in general finding a little difficult. आपको थोड़ा मुश्किल क्या लग रहा है, तो आप उन चीजों में ज्यादा फोकस्ड रहते हो ड्यूरिंग द सेशन. आपको पता होता है कि मैम जब ये समझाए तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है. प्लस इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज अराउंड इट, you're immediately hand in hand are able to solve it. लगे हाथ आप उसको जो है सॉल्व करवा सकते हो, पूछ सकते हो. अगर वो मिस कर देते हैं तो नहीं पूछ पाते. ठीक है, क्या बात है. सो या प्लीज गो ahead and let me know if you've done your pre-class activities or not. Tejaswini, Vishal, good evening and welcome. So guys, as I was telling you, आपको पता है कि आपका इम्बाइब सिंपल सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च किया हुआ है, जहां पे हमने बना दिए हैं आपके बैचेस. व्हाइल यू गाइस आर लेटिंग मी नो इफ योर प्री क्लास एक्टिविटीज डन और नॉट. सो 12 अप्रैल को पहला लॉन्च हुआ था बैच का, दूसरा 15 मई का है. एंड द बेस्ट एजुकेटर्स अराउंड द कंट्री आर हियर फॉर यू. मैथ्स के लिए रफीक सर, अक्षय सर साइंस के लिए हैं, और मैं आपका सोशल साइंस ले रही हूँ, जहाँ पे अराउंड 800 hours of live sessions through the year will be conducting with you, with those top educators that you have assigned for your batch, where you will also be given the pre and the post class activities for better and enhanced learning and tracking the outcome, tracking your progress, whether you've really understood the कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट और नॉट. आपको साथ ही साथ मिलेंगी फुल लेंथ टेस्ट, स्पार्ट टेस्ट, हर एक चीज जिसकी एनालिसिस सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगी. मैं पहले भी बच्चों को यही बता रही थी कि बच्चे जब आप सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हो अपने प्रिपरेशन में और जब टेस्ट लेते हो तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हो, विच इज you fail to understand whether you have a pattern, whether you have a particular weakness in terms of a certain standard of answer writing. कि हो सकता है आप subjective answers आपकी strength नहीं हो, या objective answers में 1 mark के questions में आप ज्यादा mistake कर रहे हो. वो pattern identify नहीं करोगे तो उस pattern को break नहीं कर पाओगे, और वो same pattern repeat हो जाएगा आपके final exams में and eventually next year in your board examinations also. So it's very important for us to be able to identify these patterns and break it and work on it, because these patterns are what also highlights our area of development. ठीक है, very nice, very nice. Okay, so these are the things that we have to keep in mind, and these tests that we are doing, जैसे हम जब नॉर्मली भी अपना टेस्ट लेते हैं या स्कूल में कभी कहीं होता है, हर एक टीचर के लिए बैठकर हर एक बच्चे का इंडिविजुअल रिमार्क लिखना मुश्किल होता है. तो वो नॉर्मली हमें मार्क्स विद अ स्मॉल रिमार्क में भी दे देते हैं, बट डिटेल्ड एनालिसिस ना टीचर्स को इतने चेक आंसर शीट्स चेक करने के बाद याद रहता है, ना हम जाकर फॉलो अप करते हैं, है ना.
तो आपको आपकी पैटर्न्स जो खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। जो आप सीधा क्वेश्चन आंसर गलत सही करोगे तो नहीं होंगी। इन टेस्ट्स को लो इम्बाइब के एप्लीकेशन पे दिस विल हेल्प यू हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड हेंस वर्क ऑन इट अकॉर्डिंगली। क्योंकि भैया जब टीचर सेम, किताबें सेम, सिलेबस सेम, क्वेश्चन पेपर सेम, देन हाउ आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर एंड अदर्स आर नॉट। ऑफ कोर्स कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ रहे, बट जब दो बच्चों ने सेम अमाउंट ऑफ पढ़ाई की है, सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लाए हैं, फिर उनके मार्क्स में क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी, टेस्ट की कमी, अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करने की, जिन पे काम करना है उसकी कमी है। अभी से एक नोटबुक बनाकर मेंटेन करना शुरू कर दो कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप रिपीटेडली गलत करते हो, जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, और उन पे काम करना है। मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सम है जिसमें यू हैव गॉट स्टक मल्टीपल टाइम्स, मेक अ नोट ऑफ इट। एक अलग से नोटबुक मिस्टेक्स बुक की आपको बनानी है, जहां पे आप सारे मिस्टेक्स लिखोगे। फिर क्या होगा? वो मिस्टेक्स कभी आप नहीं रिपीट करोगे। ठीक है। साथ ही साथ आपको मिलते हैं और भी ई बुक्स अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टू एनहांस योर लर्निंग, एंड यू डोंट हैव टू स्प्लर्ज अहेड, इन्वेस्ट इन दोज बुक्स अहेड आफ्टर लेटर। तो आप ई लर्निंग उन बुक्स से कर सकते हो। आपके पास 3D लर्निंग वीडियोस होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ये सब कुछ होता है जिससे आप अपनी कर सकते हो तैयारी। एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट जस्ट 499 रुपीज पर मंथ इफ यू गो हेड विथ अ ईयरली सब्सक्रिप्शन। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो पर मंथ का कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है 699, और 3 महीने का लेते हो तो 599 पर मंथ कॉस्ट आता है प्लस जीएसटी। अब इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट टिल 13th of May यू हैव फ्रॉम 11 to 13th ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे। मॉम 25 आपको अप्लाई करना है कोड, इस पे और एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। बट पते की बात ये है दैट द नंबर ऑफ ट्रायल डेज इज 3 नाउ, इट्स नॉट 7। 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल है, आपको जो भी ट्राई करना है without paying any money, you can just go ahead and give it a try and figure out everything. But after that you'll have to opt for a subscription. The best part is अगर आप 1 साल का भी opt करते हो, ये सिंगल सब्सक्रिप्शन है बच्चों। इस सब्सक्रिप्शन में आप सिर्फ एक क्लास का नहीं ले रहे हो सब्सक्रिप्शन, आप इम्बाइब पे होने वाली हर एक चीज का प्राइस यहाँ पे इसमें ही पे कर दे रहे हो। यानी कि अगर आप 499 पर मंथ दे रहे हो, आप सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं दे रहे हो, आपके कोई सिबलिंग 10th में है, 12th में है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू कैन शेयर द सब्सक्रिप्शन टुगेदर एंड इकट्ठे आपको पूरा का पूरा पैकेज विद इम्बाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, ऐप फॉर पेरेंट्स, योर लर्निंग आउटकम्स ऐप, डाउट रेजोल्यूशन, live classes for all the grades, all the examination goals that we are conducting on Imbibe will be accessible to you. ठीक है जी। तो चलिए अब इसी बात पे बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने बताया, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज आर रियली इंपॉर्टेंट, इट इमेंसली मार्क्स अ difference in your scores, which is of 12.62% for the concept, where you fulfill it along with your live class. So that's the difference that it creates. Okay, now the chapter that we are getting started, as we know, is physical features of India. आज हम major physiographic divisions और Himalayan mountains की बात करेंगे। Further ahead, this chapter has northern plains, peninsular plateaus, Indian desert, coastal plains and islands groups of India. The concepts that we are going to cover today is going to be the major physiographic divisions, importance of these divisions, Himalayan mountains, the 3 parallel ranges of Himalayas, division of Himalayas based on rivers, and what are Purvanchal Himalayas, ये सब हम फिनिश करेंगे। अब इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी दैट स्कैन योर टेक्स्ट बुक एंड गो अहेड एंड लर्न विद द हेल्प ऑफ इम्बाइब लेंस। वो आपको जो भी 3D वीडियोस दे रहा है, हिमालय स्कैन करोगे तो हिमालय का एक 3D वर्जन आ जाएगा स्क्रीन पे, या जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको पूरी विजुअलाइजेशन दिखेगी। क्योंकि देखो, फिजिकल फीचर्स हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, ठीक है। पहाड़ के सामने खड़े भी हो जाओगे तो पूरा विजन कैसा दिख रहा है विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट ये 3D लर्निंग वीडियोस और ये सब कुछ जो है आपको इम्बाइब लेंस एज अ सजेशन देगा, उसमें आपकी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियरली हो पाएगी। यू विल बी एबल टू सी इट ऑल, एंड that is very important. ठीक है, चलो। तो as you guys know the drill, we'll start with the first 3 questions, and this is the very first question. The Indus River flows through which mountain range? किस mountain range से होकर Indus River flow करता है? बहुत बार पहले भी पढ़ा है हमने, हमें पता है, आप आराम से गेस कर पाओगे। हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, अरावली या सतपुरा रेंज? So most of you have done. Hi Vishal, most of you have actually done your pre-class. That's amazing. Hi Shanika. Guys, whatever questions you have, absolutely put it in the chat. कोई problem नहीं है, है ना? Gautam, good evening.
अहम स्टूडेंट प्रतिभा तेजस्विनी विशाल शौर्य अमेजिंग यार अमेजिंग. It is the Himalayas, right? Okay. Next question. The Thar Desert is located in which Indian state? Thar Desert जो है वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश. One of the easiest questions I'm guessing. Okay. And Pratibha, Tejaswini, Vishal, Shaurya, Manya, Shagun, student Vedanshi, superb. It will be Rajasthan. Last question before we move on forward. Which river is known as the Ganga of the South? South का गंगा हम किसे कहते हैं? Okay, I can see a lot of confusion. Ahem, Vedanshi, good job. Student, very nice. Guys, it'll be Godavari, but we'll get to know that in the sessions. So not to worry if you did not know that. So what if India had not collided with Eurasia? Now, how many of you remember I have taught this to you while teaching India size and location? जब मैं इंडिया साइज और लोकेशन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया है कि इंडिया जो है वो पहले एक्चुअली एशिया में नहीं थी. ठीक है, तो बेसिकली हाउ इट स्टार्टेड वाज पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था. मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ाई थी, कन्वेक्शन करंट से कैसे पुश आता है विच लीड्स टू अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज एंड द डिविजन ऑफ द लैंड एंड द प्लेट्स. सो पहले ये जो पूरा हिस्सा है हमारा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब इकट्ठे हुआ करते थे. दे यूज्ड टू बी टुगेदर. द होल लैंड वाज इन जस्ट वन प्लेस. इट वाज नोन एज अ सुपर कॉन्टिनेंट. दैट सुपर कॉन्टिनेंट हैड अ नेम व्हिच वाज पैंजिया. लेकिन फिर ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से पैंजिया ब्रोक डाउन इनटू टू बिग पीसेस ऑफ लैंड विच इन द नॉर्थ वाज नोन एज लॉरेशिया. साउथ में जो था, मतलब नीचे की तरफ जो था, उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे. ये दो कॉन्टिनेंट्स बने. फिर फर्दर मूवमेंट होती गई और ये और टूटते गए टुकड़ों में, गिविंग बर्थ टू यू कैन से द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स दैट वी हैव, जहां पे गोंडवाना के टुकड़े टूटकर नीचे साउथ में चले गए, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, ये बनने के लिए. लॉरेशिया के टुकड़े टूट गए, आपका बन गया एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सब बन गया. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड इज इंडिया का जो सर्दर्न पोर्शन है, हमारा हिमालयस और ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जिस्ट नहीं किया करता था. दिस इज हाउ इंडिया यूज्ड टू लुक लाइक. ये गोंडवाना में था.
ये गोंडवाना से निकल करके it broke off and then just came and joined Asia over here and hence became the part of Asia. Otherwise we would also have been in the southern hemisphere. अभी हमारे यहाँ सर्दी चल रही होती, विंटर्स चल रहे होते, बट नहीं चल रहे बिकॉज हम आ गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड वी जॉइन एशिया. So this is what I have taught. Just in case if you have not seen, please make sure to watch. I've done 3 sessions on India size and location with them Vibe Life classes. Second session of India size and location में मैंने ये सब डिटेल में बहुत समझाया है ताकि इस चैप्टर में आपको मदद मिले. तो इंडिया जो है वो पहले जैसे मैंने आपको बताया गोंडवाना में थी. तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा इंडिया का, दिस इज लाइक द ओल्डेस्ट पीस ऑफ लैंड. बाकी आपका हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ये सब बहुत न्यूली फॉर्म्ड है. ठीक है. सो इंडिया वुड हैव बीन सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन मच लाइक ऑस्ट्रेलिया, बट तब हम होते ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन इंडिया यूरेशिया से जो है या लॉरेशिया कह लो कोलाइड कर गया और एक यूनिक डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफिक डिवीजन बना ली हमने एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. उसी के बारे में इस चैप्टर में हम डीप डाइव करेंगे. सो because I've explained the tectonic plates and all of these things much in detail, I'm not going to dwell into that more. Yes, absolutely Rashi, Gondwana and Pangaea, correct. Ahem, correct. ठीक है शौनिका, जो भी क्वेश्चन है प्लीज गो ahead and get it clarified. I'm waiting for you to answer. तो आप बात कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की. नाउ गाइस, whenever I say India, कहीं पे भी आप बोलते हो, this is a phrase that very commonly is used along with India. Can you guys tell me what that phrase is? वो क्या टर्म, वो एक फ्रेज है. जब भी आप इंडिया बोलोगे आपके दिमाग में सबसे पहले ये टर्म पॉपअप करेगा, ये फ्रेज पॉपअप करेगा. किस फ्रेज की बात कर रही हूं मैं? Subcontinent, diversity, absolutely. India's यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना. कोई भी कहीं पे भी किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं जाकर के बोलता है तो हमें जो सुनने में आता है वो ये होता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज वेरी डाइवर्स. नॉर्मली ये जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं ये कल्चर, लैंग्वेज, रहने का तरीका, इन चीजों को एड्रेस करता है. बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज नॉट जस्ट डाइवर्स इन द सेंस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, नहीं. इसके अलावा हम हर तरीके से डाइवर्स है. हमारे पास हर एक तरीके की फिजिकल फीचर है. पहाड़, नदी, झरने, ओशन, बे, गल्फ, mountains and deserts and plateaus and ghats and islands and peninsula, you name it and we have it. So we are very very diversified even in that sense. एकदम उस सेंस में भी हम काफी 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 ज्यादा जो है वो डाइवर्सिफाइड है. ठीक है. So my question was that what is the other phrase that comes and pops into your head whenever you hear the term India? हमारे देश का नाम जब भी हम सुनते हैं that would be diversification. So बच्चे, we have everything, right? Some of you might be staying in the mountains, in the hilly regions. Some of you might be staying in Rajasthan and maybe in and around the desert. कोई हो सकता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इधर किधर से है तो आपके पास आप आइलैंड में रह रहे हो. कोई अगर साउथ में रह रहा है तो पेनिनसुलर रीजन में रह रहा है. कोई मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, उड़ीसा में रह रहा है तो प्लेटू रीजन में रह रहा है. और उसके हिसाब से आपके जो अलग अलग कल्चर है, टेरेन है, एनवायरमेंट है, वो डिटरमाइन होती है. Because India is a land of great physical variations and divisions. जहाँ पे प्लेटू जो है हमारे is the oldest landmass. As I told you, it was a part of Gondwana. तो वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था. तो इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास, हैज ऑल द मिनरल्स, वेरी रिच इन मिनरल्स एंड natural resources. Then if you talk about Rajasthan,
तो वहां पे हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, द सैंड ड्यून्स एंड द कैक्टस एंड द ड्राई वेदर. Peninsula is also considered to be one of the most stable block of land in the entire nation. Then we have Himalayas or the northern plains, which are very recently formed in terms of geographical area. तो जैसे मैंने आपको बताया, जब इंडिया आकर यूरेशिया से जुड़ा तब फॉर्मेशन हुई आपकी हिमालयस की और हिमालयस के साथ नॉर्दर्न प्लेन्स की. सो दीज आर वेरी यंग फिजिकल फीचर्स दैट इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ. ये बहुत नए यंग फीचर्स है जो हमारे पास पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे. इनफैक्ट जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिमालयस आर इवन कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ एन अनस्टेबल जोन बिकॉज it's very youthful. The topography is very high peak and deep valleys and fast flowing rivers, and it's said that it's unstable because it's moving, still growing. अभी भी बढ़ ही रहा है, ग्रो कर ही रहा है. Northern plains Himalayas की वजह से बने, with the rivers that were coming from the plains, mountains to the plains, deposited everything. They eroded and formed the plains, the most fertile agricultural land and storehouse of grains for us. पेनिनसुलर लैंड जो है वो हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिनमें थोड़ी बहुत हिल्स है, वाइड है, स्टेबल है. तो हमारे पास यू नेम इट एंड वी हैव इट वाला कंडीशन है. इस बेसिस पे जब हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. पेनिनसुलर प्लेटूज में हमारे पास एक और चीज आ जाती है जो कि है वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, my pen somehow is not, अरे very good, not western ghats, ghats बोलना था मुझे. तो peninsular plateau में we also get something which is ghats, which is western and eastern ghats. ये हम उसमें ही पढ़ेंगे इनके बारे में, what do ghats mean, what do they do, and ये आगे काम आएंगी तो इनको याद रखना है. तो इंडिया हमें समझ आ गया, it exhibits very a whole significant diversity in geographical terms. ये मैंने आपको बता दिया, राइट. पेनिनसुलर आपका ओल्ड लैंड मास है, हिमालयाज और प्लेन्स रिसेंटली फॉर्म्ड है. हिमालयाज को अनस्टेबल मानते हैं, अभी भी ग्रो कर रहा है, प्लस हाई पीक्स, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, डीप वैलीज, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ऊपर नीचे, rugged what not. And the northern plains, which is composed of alluvial deposits, these deposits which comes from the Himalayas. So these are your Himalayas. यहाँ से रिवर बहती है और ये देखो, ये प्लेन्स में, ये पूरा स्ट्रेच जो ये प्लेन है, प्लेन्स में ला करके क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है सॉइल को जिसे एरोड किया है. Peninsular plateau consists of igneous and metamorphic rocks. Igneous rocks और metamorphic rocks क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा है हमने. तो igneous से हमारा मतलब है जो मोल्टन लावा सॉलिडिफाई होकर के बना है रॉक्स, उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. और वो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सारी चीजों की वजह से कन्वर्ट हो जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है. सेडिमेंटरी रॉक्स जो हैं वो लेयर और लेयर डिपोजिशन से बनते हैं, इनको सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं. ये भी वेदर चेंजेस की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं. तो पहला स्टेज इग्नियस या सेडिमेंटरी होता है, उसके बाद वो चेंज होकर के मेटामॉर्फिक बन सकते हैं, जो उनको उनकी यूनिक क्वालिटी और फीचर्स देता है. तो पेनिनसुलर प्लेटो में हमने थोड़े हिल्स, थोड़े वाइड वैलीज, ये सब कुछ देखे हैं. तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, which physiographic division of India is primarily composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide alleys? Peninsular plateaus, Himalayas, northern plains or islands?
Shonika, it's 5 millimeter per year on an average. It's not 4%. That is why they're still said to be active. Slightly they keep on increasing. Okay. So we have student, very good. Perfect answer. Ahem, Manya, Tejaswini, Vishal, Shaurya, very, very good. Peninsular plateaus, which will be the correct answer. Now moving on and talking about the Himalayan mountains. अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? Himalayan mountains की बात कर रहे हैं. तो हिमालयन माउंटेन्स क्या है? हमारे यंग, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स. तो अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि इंडिया का यंगेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, यंगेस्ट फिजिकल डिवीजन क्या है, तो वो हिमालयास होंगे. और सेफ साइड पे रहने के लिए हम साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलेंगे, क्योंकि दे बोथ वर फॉर्म्ड टुगेदर. इनमें आपका हिमालय जो है, जो हमने जैसा पढ़ा, इसे हम अनस्टेबल मानते हैं. थोड़ा अनस्टेबल इसलिए बिकॉज दे आर ऑल्सो जियोलॉजिकली स्टिल एक्टिव, grows like 5 millimeter per year. I think 5 or something ऐसे ही है. ठीक है, कुछ 5 मिलीमीटर ये हर साल बढ़ता है, तो इसलिए इसको जियोलॉजिकली एक्टिव भी मानते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर द यंगेस्ट फोल्ड. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनस्टेबल हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं because they have like high ranges, deep valleys, सब कुछ है. It's a combination of all. So that is what determines the kind of nature and characteristic of the mountains. So the Himalayas are geologically young and structurally fold mountains, properly folded mountains हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, if you guys remember, that when India like this went and joined Eurasia, यहाँ पे a sea used to exist between, which was the Tethys Sea. Right? तो ये जो सी है, इसका सी बेड राइज हो जाता है और माउंटेन्स में फोल्ड हो जाता है. फोल्ड होके दोनों तरफ से, इधर से भी लैंड और इधर से भी लैंड आता है. तो सी का लैंड जो है वो प्रेशर से उठकर फोल्ड हो जाता है एंड द हिमालयास गेट फॉर्म्ड. सो दे विल स्ट्रेच अक्रॉस द एंटायर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. ये पूरे बॉर्डर में, दिस एंटायर बॉर्डर, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू. इस पूरे बॉर्डर में इसी वजह से हमारा हिमालय स्ट्रेच करता है. ठीक है, इतना ज्यादा वेस्ट नहीं आता लेकिन थोड़ा सा आता है. सो दैट इज हाउ दे आर. ये जो टोटल लेंथ है हमारी, ठीक है, दिस इंटायर लेंथ इज ऑफ 2400 किलोमीटर्स. एंड ये माउंटेन्स जो है वो वेस्ट की तरफ से शुरू हो करके हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाते हैं. एंड इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर्स के टर्म्स में इनसे ओरिजिनेट होती हैं और इनके ऊपर रन करती हैं. सो दीज आर द रिवर्स एंड दीज आर द डिटेल्स ऑफ द माउंटेन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ हिमालयास. तो ये हमारे जियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं और इंडस से ब्रह्मपुत्र सब यहाँ पे कवर होता है. नाउ दीज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लॉफ्टीएस्ट एंड रगड माउंटेन्स. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या याद रखना है? वेरी वेरी लॉफ्टी, विच मीन्स वेरी ह्यूज, बिग, लॉफ्टीएस्ट एंड रगड, which means it's not like very plain and simple सा है. ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ups and downs, everything that you can imagine, it is there and it is also acting as a barrier for India. है ना, इंडिया की तरह क्या कर रहा है? नेचुरल बैरियर की तरह भी काम कर रहा है. It is also acting as a natural barrier for India because it segregates us from our neighboring countries like China and acts as a natural
बाउंड्री एंड बॉर्डर, एक नेचुरल बॉर्डर की तरह बन जाता है. दे आर आर्क शेप्ड, सो देयर शेप इज काइंड ऑफ एन आर्क. ठीक है, ऐसा आर्क जैसा है. सो इफ यू सी ओवर हियर ऑल्सो व्हेन आई ड्रू, you can see the arc over here, right? See the arc over here. So this is how it is. It's not straight, it doesn't go in a straight line, it's kind of arc in shape. और आर्क के जैसा शेप होने के साथ साथ जो डिस्टेंस ये रन करता है, विच इज अराउंड 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ is the distance that it runs. अब इसके साथ we also have to understand the width. तो बच्चा width जो है इसकी, यानी कि जो चौड़ाई है वो वेरी करती है, because the mountains are not equally wide all around the arc that exists. ये पूरा हर जगह सेम चौड़ाई से नहीं चल रहा है, वेरी करता है, कहीं ज्यादा कहीं पे कम. So width of the Himalayas will range from 400 kilometers, and you can imagine 400 kilometers इसकी चौड़ाई है. How broad would that be? To 150 kilometers, which means towards the western side it is wider, and as moves towards east gets नैरो, थोड़ा नैरो होने लग जाता है. तो शुरू होता है 400 की चौड़ाई से और जाता है ये लगभग 150 किलोमीटर. तो कश्मीर वश्मीर के पास जो हमें हिमालयाज मिलते हैं, जो कश्मीर वेस्ट की तरफ से शुरू होते हैं, वो हमें बहुत ब्रॉड दिखेंगे, अराउंड 400 किलोमीटर्स के. बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हिमालयाज, वो पतले हो जाते हैं, 150 किलोमीटर्स के होने लग जाते हैं. Now that is about the length and the width. If you talk about the height, that is your altitude. तो height भी vary करती है. It's not like that roughly it is similar everywhere कि मोटा मोटा height जो है वो बराबर ही है हर जगह, नहीं. height जो है वो vary करती है. Again, these are greater in eastern half than those in western halves in terms of heights. तो width से थोड़ा ऊंचा उल्टा हो जाता है. वेस्टर्न हाफ में आपको क्या मिलेगा? वेस्टर्न हाफ में आप देखोगे कि ये ज्यादा हाई है इन जनरल देन योर ईस्टर्न हाफ. ईस्टर्न हाफ में रिलेटिवली थोड़ा लो है. ना हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. ये 3 पैरेलल ऐसे रेंजेस है, पहाड़ है, एक ही नहीं है, ऐसे 3 रेंजेस रन करती हैं और वो एक दूसरे से पैरेलल रन करती हैं. ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल रन करती हैं इन देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लाइक फ्रॉम लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है वैसे उस तरीके से. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज द एवरेज विड्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में एवरेज माउंटेन जो आपका विड्थ है वो कितना है? Between land and ocean, a fold of mountains can form or not. It depends on the physical phenomenon. If there is a push which does make the mountain fall, which does make the land fold, तो fold हो सकता है. पुश पे डिपेंड करता है, बट आइडियली थोड़ा सोचना डिफिकल्ट है ना. ओशन क्या पुश करेगी? लैंड, दो लैंड पुश करी थी तो बीच का जो सरफेस था वो ऊपर आ गया. Yes, Shanika, it does prevent us. It does protect us. Absolutely correct. And that was to answer your question. Ahem, student, very good. Manya, Shagun, Vishal, Shaurya, perfect. Rashi has also taken an attempt, 150. कश्मीर में 400 है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश के तरफ जाते जाते 150 हो जाता है. Another question. In which direction the Himalayan mountain ranges run from the Indus to Brahmaputra? Indus से ब्रह्मपुत्र अगर रन करिए तो क्या डायरेक्शन डिफाइन करेंगे आप? वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ?
direction in which the Himalayas run from Indus to Brahmaputra in India. Okay. Ahem, Manya, Rashi, Shagun, Vishal, Shaurya, very good. The correct answer would be west to east. है ना? Option A हमारा correct है. Okay, coming back and talking about the parallel ranges of Himalayas. तो सबसे पहले हमें ये समझना है, guys, when the question doesn't show, just refresh. ऑल्सो जब आप चैट बंद करते हो, क्वेश्चन ऊपर पॉप कर रहा होता है, क्वेश्चन लिखकर आप उस पर क्लिक करोगे तो क्वेश्चंस खुल जाएंगे. आई एम ऑडिबल? Ahem, can you refresh, or can somebody just inform Ahem in the message that I am audible to everyone? It's probably Ahem who's facing the trouble. Please उनको inform कर दीजिए. Okay. Now I was telling you कि 3 parallel ranges हैं longitudinal extent में. So let me show you how it goes. Highlighter on कर लेते हैं हम. और पहले एक रेंज ऐसे जाती है, ठीक है, उसके नीचे दूसरी रेंज ऐसे जाती है. हाइलाइटर ऑन नहीं हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है, कोई बात नहीं. और फिर जाती है तीसरी रेंज, ठीक है. तो ये 3 रेंजेस ऐसे बने हुए हिमालयस के, जिनमें आपका पहला वाला जो है वो हिमाद्री है. विल रीड अबाउट ईच ऑफ दीज. The second one is Himachal. The third one is the Shivaliks. ठीक है, थर्ड वाला क्या है हमारा? Shivaliks है. So these are the 3 ranges that we have. The northernmost range is your Great or Inner Himalayas or Himadri. जो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये इनर हिमालयस भी कहलाता है. तो अदर नेम्स विल ऑल्सो बी रीडिंग, ठीक है. तो अब हिमाद्री के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो ग्रेट हिमालयस, इनर हिमालयस और हिमाद्री. नाउ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव द कंफ्यूजन दैट ये इंडिया हमारा जो है वो यहाँ पे ऐसे है. आई विल जस्ट ड्रॉ इट फॉर अ क्विक मोमेंट विथ अनदर कलर टू शो इट टू यू. सो आफ्टर दैट आई विल इरेज इट. सो इंडिया समवॉट गोज लाइक दिस. मतलब this was not done very well. ऐसा करके it goes, north east is there and then it comes and then you have the lower part and then Gujarat and Rajasthan. I've done a very bad drawing, but this is how roughly India would look like. ठीक है, the second one I'm doing a little better job, but here I've done a really bad job. So because we are here, this is India, है ना, तो हम ये सोचते हैं that oh this should be the innermost, right? ये हमारे सबसे पास है, ये outer most होना चाहिए, ये second होना चाहिए और ये innermost होना चाहिए. That's normally how you would think. But you're thinking from the perspective of placement of these from India's perspective, like being in India, वहां के perspective से सोच रहे हो आप. लेकिन जब आप इसको other perspective से सोचते हो, which is of them just existing as is, ठीक है, मुझे erase करना ही पड़ेगा. 1 second. So this was our Shivaliks. And this is our Himachal.
Okay. So as I was telling you that these parallel ranges, what we have to understand, we don't have to think from the perspective of India. कि India से ऐसे. When you start, this is range number 1, range number 2, range number 3. So this becomes the innermost. ठीक है, इधर से ऐसे जाते हैं हम. ये innermost बाहर की तरफ से हो जाता है, सबसे पहले आता है. तो इन्हें ग्रेट इनर या हिमाद्री, इन सारे हिमालयस के नाम से जाना जाता है. ये सबसे लॉफ्टी हैं. आउट ऑफ ऑल द 3 सबसे हाईएस्ट पीक्स और रेंजेस जो हमें मिलते हैं वो हिमाद्री में ही मिलते हैं. एवरेज एल्टीट्यूड, द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन्स ओवर हियर इज 6 किलोमीटर विच इज लाइक 6000 मीटर्स. सो यू कैन इमेजिन कि कितने बड़े बड़े पहाड़ होंगे कि एवरेज हाइट जो आ रही है लॉफ्टीएस्ट पीक्स की वो 6000 मीटर्स आ रही है. So you have to understand that all the loftiest peaks of Himalayas they lie over here. वो यहाँ पे मिलते हैं हमें. ठीक है, तो आपका माउंट एवरेस्ट, K2, ये सब जो बड़े बड़े से बिल्कुल पहाड़ है, जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं, वो सारे प्रोमिनेंट पीक्स जो है हमें आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब आपको उधर ही मिलेगा विच इज योर हिमाद्री में. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, इट विल कंटेन द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. ये जो फोल्ड्स है ग्रेट हिमालयस के, ये काफी एसिमेट्रिकल है नेचर में, विच मीन्स दैट दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे. कुछ पैटर्न नहीं है. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिमेट्री की ड्राइंग की, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ जैसा दिख रहा है, दैट इट इज लुकिंग ऑल इक्वल, ऐसे सिमेट्री बन रही है, नहीं, इट डजंट लुक लाइक दैट. इट मे लुक लाइक दिस. ठीक है, एकदम से कुछ बड़ा आ गया, ऐसे करके अलग अलग तरीके के पहाड़ आपको यहाँ पे मिलेंगे. कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी. ये यहाँ हमें देखने को मिलता है. द कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. तो ये जो फोल्ड्स हैं एसिमेट्रिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े हैं. सारे लॉफ्टिएस्ट पीक्स यहीं पे मिलते हैं. अगर हम कोर देखने जाए, दैट व्हाट इज इट फॉर्म्ड ऑफ, बना किस चीज का है, हिमाद्री, तो वो हमें ग्रेनाइट का मिलेगा. तो हिमाद्री में हमें याद रखना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. ओके, सो विच रेंज within the Himalayas is known for containing the loftiest peaks and with an average of 6000 meters. Hi Ruchir, hello. M. Vishal, Shaurya, Rashi, Shagun, student, very good. It would be the Himadris. Himadri would be the correct answer. Now moving on to the next one. सेकेंड लेयर पे चलते हैं हम, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस. सो हिमाद्री, इनर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस. ग्रेटर के बाद क्या आएगा, लेसर हिमालयस. सो लेसर हिमालयस और हिमाचल, एज यू कैन सी दिस सेकेंड लेयर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये साउथ में आता है. तो नॉर्थ से साउथ हम देख रहे हैं. नॉर्थ में सबसे पहले हिमाद्री आता है, नेक्स्ट जब आप आते हो तो हिमाचल आता है. ठीक है, द नेक्स्ट लेयर दैट यू सी दैट इज फॉर्म्ड इज हिमाचल. एंड द रेंज लाइंग टू साउथ ऑफ हिमाद्रीज, जो काफी रगेड माउंटेन है, वो हिमाचल या लेसर हिमालयस कहलाते हैं. एंड दे आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ वेरी कंप्रेस्ड ऑल्टर्ड रॉक्स. मतलब बहुत प्रेशर से दबे हुए रॉक्स से बना हुआ है. ये काफी स्टेबल होगा. देखो बच्चे, व्हेन यू कंप्रेस समथिंग, इट गेट्स प्रेस्ड ऑन एंड इज वेल फॉर्म्ड. बहुत कंप्रेस नहीं होगा तो दे मे बी
loosely formed and break off easily. So these are very well formed compressed mountains जो आपके altered mountains होते हैं. एंड इनका जो एल्टीट्यूड है वो हिमाद्री से कम होगा. द एल्टीट्यूड रिलेटिवली विल बी लेसर देन हिमाद्रीज ऑन एन एवरेज. इनका एवरेज एल्टीट्यूड 3700 to 4500 मीटर. सो इट वाज 6000 मीटर्स फॉर हिमाद्री. हिमाचल का आपका 3.7 से 4.5 मीटर्स के बीच में कहीं पे होगा. तो ओवरऑल विड्थ इफ यू से, तो इनका जो विड्थ है आपका, हिमाद्री का मैंने मेंशन नहीं किया, बट हिमाद्री का यू विल फाइंड समवेयर अराउंड 150 to 400 किलोमीटर्स तक का विड्थ होगा. ठीक है, 200 टाइप्स मान लो. लेकिन वहीं पे जो हमारा हिमाचल है उसका विड्थ रिड्यूसेस. एवरेज विड्थ आपको कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर्स के अराउंड में जो है वो नजर आएगी. सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमाचल आर योर पीर पांजल, धौलाधार. ठीक है, धौलाधार, महाभारता, ये रेंजेस हैं जो यहाँ की लॉन्गेस्ट हैं और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट में से काउंट होती हैं. सो इमेजिन there are 3 different ranges and all of them will have their own important peaks. जैसे यहाँ पे loftiest peaks थी हमारी, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब आ गया. यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला का क्या है, पीर पांचल, धौलाधार, महाभारता. दीज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस, द प्रोमिनेंट वंस. पीर पांचल इसमें सबसे लॉन्गेस्ट है. आउट ऑफ दीज 3 ऑल्सो नंबर 1 पे जो आता है आपका हिमाचल में बीइंग द लॉन्गेस्ट and the most important will be Pir Panjal followed by Dhauladhar and Mahabharata ranges. ठीक है, these are also pretty prominent ones. Now these ranges will consist of various valleys because ये placed है आपका कश्मीर वगैरह के अराउंड. तो हमारा जो अलग अलग हिल स्टेशंस हैं, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, इन हिमाचल प्रदेश, ये सब हिमाचल में लाई करती है. इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश पूरा हिमाचल पे ही है, इसीलिए उसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया है. एंड दिस इज द पोर्शन विच इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस दैट इट हैज टू ऑफर टू अस इन जनरल. ठीक है, तो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which valley is situated with Himachal or Lesser Himalayas range in and is famous for its hill stations? Brahmaputra Valley, Kaveri Valley, Ganga Valley or the Kangra and Kullu Valley? Can everyone just let me know if I'm audible to you guys properly or not? Because I've been hearing a lot that the voice is not clear, voice is not clear. आप मुझे एक बार बता सकते हो कि सबको मैं ढंग से सुनाई दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ? Just write it in the chat and let me know. And meanwhile, the correct answer for this is your Kangra, and we have Shagun, Vishal, Shaurya, Ahem, Rashi student. Very good. It's clear? Yes. Shanika, what do you want me to explain again? ओके, शिवालिक्स पे आ जाते हैं. शिवालिक्स हमारा 3rd रेंज है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल देयर वाज 1 range, 2 range and 3 ranges. This 3rd one
is what we will refer to as शिवालिक्स, जो मैंने आपको बताया था शुरू में भी, इसे हम शिवालिक्स कहते हैं। तो शिवालिक्स इज द आउटर मोस्ट रेंज। इनर मोस्ट क्या था? हिमाद्री था, तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट इज योर शिवालिक्स। ठीक है बेटा, प्रीवियस टॉपिक बहुत बड़ा था। डू यू वांट मी टू रिपीट एंटायर हिमाचल फॉर यू? कैन यू बी अ लिटिल स्पेसिफिक? The outermost range of Himalayas is basically शिवालिक। ये एक्सटेंड करता है हमारा अगर विड्थ की बात करें तो ओवर 10 to 50 किलोमीटर्स। तो कैसा है? 200 to 400 किलोमीटर्स हिमाद्री का एवरेज विड्थ है। 150 like 100 to approximately 50 kilometers on an average is the width of Himachal. 10 to 50 kilometers is your width of शिवालिक्स। चौड़ाई की बात हो रही है, पतला होता जाता है। यानी कि ये जो पहला लेयर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस फर्स्ट लेयर इज बेसिकली योर, वन सेकेंड, दिस फर्स्ट लेयर बेसिकली इज योर हिमाद्री। ये सबसे ब्रॉड होगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेयर पे आएंगे, जो हमारा यहाँ हो जाएगा हिमाचल, हिमाचल थोड़ा कम ब्रॉड होगा। ठीक है, और सबसे पतला जो होगा, लीस्ट ब्रॉड ऑफ ऑल, इज गोइंग टू बी योर शिवालिक्स। ये सबसे पतला हो जाएगा। ओके, देन तो विड्थ हमें समझ आ गया। एल्टीट्यूड एवरेज हाइट की बात करें तो ये वाला सबसे ब्रॉड है, फर्स्ट वन, राइट? फर्स्ट वन इज द मोस्ट ब्रॉड विथ 600 मीटर्स। सेकेंड वाला हमारा नेक्स्ट पे आ जाता है, जो कि आपका 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स के अराउंड आता है। द लास्ट वन इज द शॉर्टेस्ट वंस। शिवालिक्स में सबसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। यहाँ पे आपको 900 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ मिलेंगे, यानी कि मुश्किल से 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पहाड़ जाते हैं। शिवालिक्स रिलेटिवली छोटे होते हैं। जस्ट द लास्ट 2-3 थिंग्स। ओके, लेट मी सी व्हाट डिड वी डू। अच्छा ठीक है, तो हिमाचल क्या होता है, एल्टीट्यूड वगैरह आपको समझ आ गया। ये हिमाद्री के साउथ में लाई करता है। इसकी एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर्स है। नाउ हिमाचल का जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेंज है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीर पांजल है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद सेकेंड थर्ड नंबर पे धौलाधार और महाभारता रेंजेस भी आते हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन हिमाचल। यहाँ पे फेमस वैलीज कई सारी हमें मिलती हैं, जो मोस्टली आपके टूरिस्ट प्लेसेस और हिल स्टेशंस फेमस है। दे ऑल लाई इन द हिमाचल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश भी वही लाई करता है। तो आपका ये कुल्लू मनाली, कश्मीर, कांगड़ा, ये सब हिमाचल के रेंज में लाई करता है। ऑल द फेमस हिल स्टेशंस। दैट इज द लास्ट पॉइंट दैट आई हैड डिस्कस्ड, शौनिका। ठीक है, Now talking about शिवालिक्स, as I was telling you, तो शिवालिक्स आपका एवरेज 900 से 1100 मीटर तक ही जाता है। Doesn't go very very high in altitude, बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है। The longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। देखो ये जो रेंजेस है बच्चे, जैसे कि हमने समझा, पहले इसको समझ लेते हैं, डून्स वाला पॉइंट मैं लास्ट में समझाऊंगी। ये जो रेंजेस है ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटेशन से बनी है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इज बेसिकली, इफ यू रिमेंबर वी सेड दैट वेरी वेल कंप्रेस्ड वर योर हिमाचल। हिमाचल बहुत टाइटली पैक्ड था, बिल्कुल सॉलिड माउंटेन्स। उससे भी सॉलिड हिमाद्रीज थे। शिवालिक्स बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आता है, यहां से कई सारे रिवर्स भी फ्लो करते हैं। द ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ शिवालिक्स इज नॉट वेरी टाइटली पैक्ड, थोड़ा अनकंसोलिडेटेड है, थोड़ा लूज है। ठीक है, इसीलिए यहां से रिवर्स इसको आराम से इरोड करके ले आती हैं। दैट इज वाई इरोजन ओवर हियर इज वेरी इजीली पॉसिबल, बिकॉज इट्स लूजली पैक्ड, इट्स नॉट टाइट। लूजली पैक्ड है तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा तो वो टूट कर निकल सकता है, यानी कि इरोजन ज्यादा हो सकती है। इसीलिए शिवालिक्स से आप देखोगे कि अनकंसोलिडेटेड पार्ट मटेरियल्स जो है वो रिवर्स से बह करके बहुत ज्यादा फर्दर नॉर्थ आ जाती हैं। नॉर्दर्न हिमालयस में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा एग्जिस्ट हिमाचल हिमाद्री में नहीं करती है। ठीक है, तो जो वैलीज में पानी जमा हो रही है या जो वैलीज है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलीज? वैलीज आर बेसिकली दीज डेप्थ्स दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द माउंटेन्स, राइट? दिस पोर्शन ये वैली है,
इसे ही हम वैली कहते हैं। तो ये वैलीज में अगर आप शिवालिक्स के वैलीज में देखोगे, व्हेन यू लुक इनटू द वैलीज ऑफ शिवालिक्स, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट इट इज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल, थिक soil and alluvium. Why? Because ये unconsolidated material will come and drop down into the valleys and get collected over there. वहां से गिर गिर के ये नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये सारे सेडिमेंट्स जमा होकर के यहाँ वैलीज में आपको बहुत प्रोमिनेंटली नजर आएंगे। ठीक है, now I'm actually going to finish Shivaliks and then we can probably stop. Next very important thing that you have to remember is about the dunes. तो बच्चे ये जो देखो दो तरह के वैलीज फॉर्म होती हैं, एक ये वन रेंज ऑफ माउंटेन है, दिस वन रेंज ऑफ माउंटेन इज हैविंग दीज लैटिट्यूडनल वैलीज। लैटिट्यूडनल मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला वैलीज, राइट? एक वैली ये, एक वैली ये, तो ये एक ही साथ एक लाइन में चल रही है। एक लॉन्गिट्यूडनल वैली भी बनती है, यानी कि ऐसे नहीं ऐसे। वो कब बनेगी? when there is a different range of mountains over here and we have a different range of mountains. ये अगर शिवालिक्स है तो ये हमारा हिमाचल है, तो हिमाचल और आपके शिवालिक्स के बीच में भी तो इधर इधर वैलीज बन रही होंगी, है ना? ये जो वैलीज लॉन्गिट्यूडनल यानी कि वर्टिकल लाइंस में वैलीज बन रही हैं, दो डिफरेंट रेंजेस के बीच में वैलीज बन रही हैं, उनको हम दून्स कहते हैं। तो कई सारी जगह जो यहाँ पे लाई करती हैं, some of the hill stations that we go to visit, they will have dunes in their name. If they have dunes in their name, it means it is a part of the longitudinal valley between the Himachal and the Shivalik. तो आपका देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, these are some example of these dunes. Are we clear? ठीक है, यहाँ पे जो बन रही है उन दून्स का एग्जाम्पल आपके लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का बिटवीन योर लेसर हिमालयाज और हिमाचल एंड द शिवालिक्स is known as dunes, and you find देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, all of this over here. Cool है? तो अब इसी बात पे हम कर लेंगे हमारा सवाल। The longitudinal green valleys which lie between the lesser Himalayas and Shivaliks, what are they known as? ये वाला एक बार वीडियो से पढ़कर जरूर देखना। जब आप वीडियो से पढ़ोगे तो आपको इसकी प्रॉपर विजुअलाइजेशन मिल जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा और आप देख पाओगे क्लियरली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। आई हैव ड्रॉन इट बट इट मे नॉट बी वेरी क्लियर विद द ड्रॉइंग दैट व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स। ठीक है, Rashi, student, Ahem, Shagun, Vishal, Shaurya, superb. Dunes is the correct answer. Now guys, we have seen various ranges of Himalayas. हमने देखा longitudinal ranges. जब north से south आते हैं तो we have Himadri, then we have Himachal, then we have Shivaliks. वैसे ही when you move from west to east towards Himalayas, based on the river systems that's flowing, Himalayas का further division किया गया है। तो पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, आसाम हिमालयस, सिंपल इज दैट। तो ये मैं आपको फट से 1 मिनट में समझा दे रही हूँ। ये जो हिमालयस की हमारी 3 रेंजेस हैं, ठीक है, इनको जब आप नॉर्थ टू साउथ देखते हो, ऐसे हमने 3 रेंजेस पढ़े, जहां पे हमने हिमाद्री, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स देखा, 1 2 3। व्हेन यू गो फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, तो हिमालयस 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिवर्स। जैसे द हिमालयन रीजन लाइंग बिटवीन द रिवर ऑफ इंडस एंड सतलज, दिस इज नोन एज पंजाब हिमालयस। सतलज से काली रिवर के बीच का जो हिमालयस है कुमाऊं कहलाता है। काली से आपका तिस्ता के बीच में जो है वो नेपाल कहलाता है, और तिस्ता से लेकर दिहांग के बीच में जो है वो असम कहलाता है। You just have to make sure to remember the name of the rivers. Between these rivers, these are the names that have been given to the Himalayas. ठीक है, अब ये जो पंजाब हिमालयाज है, इसमें एक थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि पंजाब हिमालयाज आपके मतलब
ये हमने ट्रेडिशनली डिवाइड किया है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो हमने देख लिया था रीजन्स, अब हम जो ऐसे देख रहे हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। ये डिविजन्स जो है रिवर वैलीज के बेसिस पे किया गया, इंडस से सतलज के बीच में पंजाब, जिसे रीजनली कश्मीर या हिमालय के फॉर्म में भी जाना जाता है, वेस्ट टू ईस्ट में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपका फिर सतलज और काली के बीच में कुमाऊं आता है, काली और तिस्ता के बीच का हिस्सा नेपाल कहलाता है, और तिस्ता और दिहांग के बीच का हिस्सा असम हिमालयस कहलाता है। ये रीजनल नेम्स जो हैं ये ब्रॉड कैटेगरीज में दी गई हैं, और ये रीजनली ऐसे ही जाने जाती है कि अच्छा पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, ऐसे। ठीक है, सो दीज डिविजन्स आर बेस्ड ऑन रिवर वैलीज, वेरी सिंपल, और ये रीजनल डिस्टिंक्शन डिविजन करती हैं। अब पूर्वांचल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सिर्फ पूर्वांचल हमारा हिमालयस का थोड़ा सा रिमेनिंग रह गया, एक बड़ा छोटा सा सेक्शन है ये। So let's quickly summarize what we have done, but before that I quickly want to give you a reminder that next year your boards year is going to be there, और वहां पे आपको चाहिए होगा प्रैक्टिकल्स, आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने दो। तो अभी से प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस जो है अपने 3D लैब एक्सपेरिमेंट से शुरू कर दो। स्कूल में एक ही बार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो स्कूल में एक ही बार कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल्स की कहानी खत्म हो जानी चाहिए, है ना। तो हमने आज पढ़ा कि इंडिया के पास मेजर डाइवर्सिफिकेशन है फिजियोग्राफिक डिविजन्स में भी। हमारे पास हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स है। सबसे पहला वाला डिवीजन हिमालयाज से हमने शुरू किया, जहां पे हमने पैरेलल रेंजेस पढ़े हिमालयाज के, ग्रेटर और इनर हिमालयाज या हिमाद्री, हिमाचल और लेसर हिमालयाज, एंड देन फाइनली द शिवालिक्स। डिवीजन ऑफ हिमालयाज जो है फर्दर रिवर्स पे भी किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल अगर नहीं देख रहे हैं तो, जो कि आपका पंजाब हिमालयाज है, कुमाऊं हिमालयाज है, नेपाल है और असम है। तो इंडस से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता एंड तीस्ता से दिहांग, इन बेसिस पे होता है डिवीजन। पूर्वांचल के बारे में हमने नहीं पढ़ा, पूर्वांचल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द हिमालयाज नॉट ओनली फॉर्म द माउंटेन डिविजन्स बट दे ऑल्सो फॉर्म वेरी वेरी फर्टाइल प्लेन्स which creates the agricultural house of India. That we'll find out in the next session. So I'm going to end the session now. Just remember to look after your post-class activities. And guys, as I told you, आपके सारे जो Imbibe सब्सक्रिप्शन है comes with a package of Imbibe Lens, Imbibe app and VLE. Do not forget to explore those doubts, यहाँ पे clarify होंगे, and make sure that you are a part of the Telegram channel that we have. So with this we have come to the end of the session. ठीक है, ओपन बुक एग्जाम में अभी भी बोर्ड्स में it's a proposal, it has not been finalized yet, so we don't know. Okay, so thank you so much everyone for being here. It was a great session. Do not forget to just make sure that you like the session, share it with your friends if you enjoyed it. Do tell me how did you like the session, and we'll catch up soon. Till the next time, have a great evening. Make sure you have taken your subscription, you have registered for the sessions, and you know what's gonna happen next, so that कहीं पे भी आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द। Till the next time, hasta la vista, bye bye, ciao, take good care of yourself, stay safe, stay tuned, and keep imbibing.